آج 9 میں کہتے ہیں خوش آمدید. اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سانسر اور میں ہوں مطاہر جلیس خان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سندھ کے 14 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کو واضح برتری حاصل ہے. پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشست جیت لی ہے. سکھر میں 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی. مزید اس رپورٹ میں. پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشستوں کے علاوہ تمام 10 وارڈز پر کامیابی حاصل کی. سکھر میں بھی 6 وارڈز پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب رہے. میرپور خاص میں چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ٹاکرا جاری ہے. کنکوٹ میں بھی پیپلز پارٹی نے 15 وارڈز پر کامیابی سمیٹ کر کلین سویپ کر دیا. خیرپور، جیکب آباد، نواب شاہ میں بھی پیپلز پارٹی کو واضح برتری حاصل ہے، جبکہ شہداد کوٹ میں ٹاؤن کمیٹی میرو خان وارڈ نمبر 2، ٹاؤن کمیٹی گڈو کے وارڈ نمبر 10 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. خیرپور کی میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 21 پر بھی آزاد امیدوار کامیاب رہا. سکھر کے وارڈ نمبر 7 پر آزاد امیدوار قاسم ملک 319 ووٹ لے کر کامیاب رہا. جی ڈی اے بظاہر کوئی مزاحمت نہ کر سکی. خیرپور ٹھری میر واہ وارڈ نمبر 5، میونسپل کمیٹی نوشیر و فیروز وارڈ نمبر 4، ٹاؤن کمیٹی کوٹ ڈیجی کے وارڈ نمبر 8 اور میونسپل کمیٹی گمبٹ وارڈ نمبر 2 پر جی ڈی اے کے امیدوار کامیاب ہوئے. تحریک انصاف اب تک صرف میرپور خاص میں UC 10 کی کونسلر ممبر اور سکھر میں میونسپل کمیٹی کے وارڈ 16 پر کامیاب ہوئی، جبکہ JUI کنکوٹ میں میونسپل کمیٹی وارڈ 15 اور خیرپور میں میونسپل کمیٹی گمبٹ وارڈ نمبر 13 اور شکارپور کی UC 48 پر کامیاب ہو سکی. پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مخالفین سے پوچھیں 4 ڈویژنز اور 14 اضلاع میں کتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا. پیپلز پارٹی کا مقابلہ اپنے ہی لوگوں سے تھا. بہت ساری جگہوں پر ہمارے ہی لوگ ناراض ہو کر مقابلے پر کھڑے ہوئے. لاڑکانہ میں PTI اور JUI نے اتحاد کیا. اب ان لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. ناصر حسین شاہ آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے. جو لوگ الزام لگا رہے ہیں، PTI جس میں آج خان صاحب کا بیان بھی آیا، MQM بھی کہہ رہی ہے، دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ایک سمپل سوال ان سے آپ ضرور پوچھیں کہ آپ نے یہ جو ابتدائی طور پہ 4 ڈویژن ہیں، 14 ڈسٹرکٹ ہیں، کتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے؟ ہمیں الیکشن اپنے ہی لوگوں سے ہے. سب چاہتے ہیں کہ جی ہم اس میں حصہ لیں. ٹکٹ تو ایک کو ہی ملتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہی لوگ ناراض ہو کر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو یہ مقابلے ہو رہے ہیں. لاڑکانہ میں یہ سب لوگ ساتھ ہیں اور بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں پہ PTI بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بھی ساتھ ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف مل کے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی. سارا دن مختلف اضلاع میں سیاسی کارکنوں کے درمیان تصادم ہوتا رہا. سانگڑ میں فائرنگ سے PTI کے امیدوار سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے. ایک ہلاکت سکھر میں ہوئی. دیگر اضلاع میں لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. بلدیاتی انتخابات ایکشن سے بھرپور رہے. مارکوٹائی زوروں پر رہی. دن بھر سیاسی کارکن لڑتے رہے. سانگڑ میں ٹنڈو آدم میونسپل وارڈ نمبر 13 کے پولنگ اسٹیشن پر گولیاں چل گئیں. PTI کے امیدوار کا بھائی جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے. دیگر واقعات میں 7 افراد زخمی ہو گئے. سکھر کے علاقے قبر میں اللہ جڑیو پولنگ اسٹیشن پر تصادم ہوا. یہاں فائرنگ اور لاٹھیوں کے استعمال سے 1 شخص ہلاک اور 12 زخمی ہوئے. کوٹ کے گرم موسم میں بھی مزاج گرم رہے. کئی پولنگ اسٹیشنز پر لڑائی جھگڑے ہوتے رہے. 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے. لڑائی جھگڑوں میں خواتین نے بھی حصہ لیا.
कंध कोर्ट की यूसी मलहेर की पोलिंग स्टेशन पर तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। पोलिंग स्टेशन टोड़ी बंगलों से अमले को अगवा कर लिया गया, जिसे पुलिस ने 4 घंटे बाद अगवाकारों से मुज़ाकरात के बाद रिहा करवाया। शिकारपुर में नामालूम अफराद यूसी वायला से बैलेट पेपर्स छीन कर ले गए और उन्हें तालाब में फेंक दिया। इलाका मकीनों ने बैलेट पेपर्स तालाब से निकाले। जैकबाबाद की यूसी बहादुरपुर के पोलिंग स्टेशन डोल डामरी में तसादुम से मुताबिक अफराद जख्मी हुए। पोलिंग स्टेशन गुलशेर कंडरानी में पीपल्स पार्टी और JUI कारकुनों में तसादुम से 10 अफराद जख्मी हुए। खैरपुर में कोट DG के वार्ड नंबर 6 में पीपल्स पार्टी और GDA के कारकुनों ने जोर आजमाई की, 10 अफराद जख्मी हुए। नवाबशाह में तसादुम में 4 अफराद जख्मी हुए। 3 पोलिंग स्टेशन से मुसल्लह अफराद बैलेट पेपर छीन कर ले गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 14 अजला पर इंतखाबात हुए। वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कई अजला में क्लीन स्वीप किया है। रुक कर लेते हैं लाड़काना का, जहां आज न्यूज की टीम मौजूद है। पहले चलते हैं इमरान सुल्तान की जानिब, जिसके बाद सलावत अबड़ों से भी इस हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। तो इमरान बताइएगा, पीपल्स पार्टी एक दफा फिर जिसका गढ़ समझा जाता है लाड़काना, यहाँ पर कहा जाए कि कामयाबी समेट चुकी है ऑलरेडी, तो गलत नहीं होगा, बस सरकारी नताइज आने का इंतजार रह गया। बिल्कुल, अब तक के गैर सरकारी नताइज जो हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल के मोहल्ले में। यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कैंप ऑफिस भी है और इस वक्त आप नीचे स्क्रीन देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे अनाउंस किए जा रहे हैं और अब तक 3035 वोट और जून के मध्य मुकाबल GDA है, जो 965 वोट जो है वो GDA के हैं। तो एक वाज़ेह बर्तरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट्स जो उनको मिल गई है। यहाँ पर सेलिब्रेशन भी इस वक्त जारी हैं। मेरे साथ हमारे यहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट सलामत अबड़ो भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनसे भी बात करें। जी, अब तक कितने नताइज आ चुके हैं और क्या पोजीशन बन रही है? इमरान भाई, देख रहे थे सारा दिन गर्मी थी, टर्न आउट कम था, फिर भी पीपल्स पार्टी तो वाज़ेह मतलब बर्तरी गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो वाज़ेह बर्तरी हासिल कर रही है। शाहरुख खान सियाल जो हैं वाइस चेयरमैन बतौर 21 पोलिंग स्टेशन में से 19 का फैसला आ चुका है वो बर्तरी में, और आजाद उम्मीदवार जो GDA के और PTI के हिमायत याफ्ता थे वो पीछे रहे हैं। ठीक है, 833 वोट है। और बिलावल भुट्टो जरदारी के जो पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं जमील सुमरो, उनके भाई भी मुनीर सुमरो, वो उनके वार्ड समेत जो ना पूरी यूनियन काउंसिल जो ना वो 13 पोलिंग स्टेशन का नताज आ गए, वो भी क्लीन स्वीप कर गए अपने वार्ड, चारों वार्ड के काउंसिलर समेत। और नौडेरो और रतोडेरो जो लाड़काना 2 म्युनिसिपल कमेटी थी वो भी 10 रतोडेरो थी और 7 वार्ड पे नौडेरो थी, वो भी बिल्कुल पीपल्स पार्टी जो है क्लीन स्वीप कर गई है। और दीगर नताज जो आ रहे हैं वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, वहाँ भी पीपल्स पार्टी और यूनियन कमेटी दड़ी टाउन 3 में, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के सारे तकरीबन पीपल्स पार्टी के। दिन भर हमने देखा कि जो लड़ाई झगड़े फड्डे और मार कुटाई सारी चीजें रही, बट एंड ऑफ द डे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफी वाज़ेह बर्तरी के साथ आगे है। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और अपने कैंडिडेट के साथ पहुंच रहे हैं और बाकायदा सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे। जी ठीक है इमरान, आज पूरे दिन की एक्टिविटी भी आपसे जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से वोटर टर्न आउट थोड़ा कम रहा। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि आज ज्यादा वोटर्स जो हैं वो यहाँ रुक करेंगे पोलिंग बूथ्स का और वोट कास्ट करेंगे। तो अब तक जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक क्या लग रहा है, कितना वोटर टर्न आउट रहा है आज? चले उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सुहेल अनवर सियाल साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लास्ट मुझे याद आया कि जब इससे पहले इलेक्शन में मैं आया था यहाँ पे तो बड़ी अच्छी हम लोगों ने कवरेज की थी। बहुत बहुत थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। और आपके भी शुक्रिया कि आपकी लाइव टीम जो है यहाँ पे घूम रही है। ये मुझे बताइए कि बहुत ज्यादा शिकायत मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि जगह जगह पे जो है वो ठप्पे भी लगे हैं और आपके लोगों ने तंग भी किया लोगों को, पूरा मीडिया जो है उसने सारी चीजें दिखाई हैं। थोड़ा सा बताएं क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं कि अभी भी एक हमारी यूनियन काउंसिल है जहां पे मुखालफिन ने हथियारों के जोर पर पोलिंग का बॉक्स जो है वो उठा के भाग गए। ठीक, और एक भी आपको शिकायत नहीं मिली होगी। जो कोई आज मीडिया का दौर है, हर किसी के पास कैमरा है, कहीं पे भी स्टैंपिंग नहीं हुई। उल्टा
ऐसे लोग पकड़े गए जो जाली अपने अथॉरिटी लेटर के साथ पोलिंग विजिट कर रहे थे। कंटिन्यूसली सुबह वो बंदे गिरफ्तार हुए, कंटिन्यूसली ये सिलसिला चलता रहा। और सबसे बड़ी नाअहली और सबसे बड़ा जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ जो रिगिंग हुई है वो इलेक्शन कमीशन ने की है। मेरे ख्याल में 25 to 30% जो वोटर लिस्ट हैं उसमें मिस मैनेजमेंट की गई। हमारे वोटर जो हैं वो सारा दिन धक्के खाते फिरे इस गर्मी में ओवरऑल। और ये शिकायत ऑपोजिशन वालों ने भी की कि वो इलेक्शन कमीशन वालों की जो है नाअहली की कंप्लेंट तो इलेक्शन कमीशन अपने अपोजिशन वालों ने भी की। इन वोटर लिस्ट के हवाले से और इन चीजों के ऊपर आप क्या जनरल इलेक्शन कॉल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं जनरल इलेक्शन? देखें जी, हमारी पूरी पार्टी को हम अपने आईएफ्स को आज भी हमने शिकायतें की है कि इलेक्शन कमीशन की जो नाअहली है उसको जो है जरूर एड्रेस किया जाए, नहीं तो इस वोटर लिस्टों के साथ जनरल इलेक्शन में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, दूसरे ये कि वो जीडीए के रहनुमा राशिद सुमरो साहब जो हैं उनसे दोपहर में हमारी बात हुई थी तो ऑनियर उन्होंने आपके ऊपर भी इल्जाम लगाए काफी सारे कि जनाब उनका अपना वोट उनको अपने हल्के में नहीं मिल रहा था, फिर उसके अलावा बहुत सारे उनकी तरफ से भी तहफ्फुज़ात हैं इस पे। मैंने चाहा आप इस वक्त सामने मौजूद देखें, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ कि राशिद सुमरो साहब मेरे भाई हैं। 2018 में जिस यूनियन काउंसिल की वो दावा कर रहे हैं आप वो रिकॉर्ड उठा लें, वो रिकॉर्ड जो है वो देख लें। मैं उस हल्के से एमपीए बना हुआ हूँ, वो पोलिंग स्टेशन मेरी जीती हुई है और मैं वहाँ से एमपीए हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुहेल अनवर साहब यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। एक बार फिर चलेंगे हम कराची स्टूडियो में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान। आप लाड़काना की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे जहां पर पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है। और अभी आपको बताएं, कोट डीजी में टाउन कमेटी वार्ड नंबर 5 पर पीपल्स पार्टी और जीडीए के कारकुनों में तसादुम हुआ। एक दूसरे पर लातें, मुक्के और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ वसीम सुमरो से। वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी देखें, दोनों पार्टियों के कारकुनों की जानिब से नताइज का इंतजार कर रहा था कि तलख कलामी हुई, जिसके बाद दोनों पार्टियों की जानिब से एक दूसरे पर लातों, मुक्कों, डंडों का इस्तेमाल किया गया। जीडीए के जो उम्मीदवार है मीर पुन्नल खान टालपुर, उसको मुखालिफिन का उनके भाई मीर दिन्नल टालपुर का कहना है कि मेरे भाई को यरगमाल करके उसको अगवा कर लिया गया है। इंतजामिया बेबस दिखाई दी है। कोटडीजी अगर तहसील की बात की जाए तो कोटडीजी तहसील में 15 से 30 मिनट तक मुसलसल फायरिंग होती नजर, मगर कोई भी पुलिस अमलदार जाए वक़ुआ पर नहीं पहुंचा। अब तक ये सूरत हाल है कि वहाँ पर जो गिनती की अमल था वो भी न हो सका है और लोगों में खौफ और राज फैल गया है। इंतजामिया इस सारे वाक़े में बेबस। बहुत शुक्रिया वसीम सुमरो, तफसीलात से आपने आगाह किया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पीटीआई उम्मीदवारों के घरों पर हमले किए गए, 800 अफराद बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इस तरह का इंतखाब कौम के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि मुल्क में फस्तायत मुसल्लत है, अवाम और तहरीक इंसाफ एक जानिब जबकि पीपी समेत दीगर गैर जमहूरी कुव्वतें दूसरी तरफ हैं। इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो पंजाब के इलेक्शंस हो या वो सिंध के इलेक्शन हो, जहां 800 आदमी बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है, पीटीआई के जो वर्कर्स वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके घरों के ऊपर जो है वो हमले किए गए, उनको बैठाया गया। मैं समझता हूँ ऐसे इलेक्शन कराने से बेहतर है फिर आप सिलेक्शन कर लें, फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। इंसाफ के इदारे जो हैं आम लोगों के लिए खुले रहे। अगर इंसाफ के इदारे बंद हो जाए तो फिर लोग अपने फैसले खुद करते हैं। और हुकूमत की जो इस वक्त जो तरजीहात हैं उसमें सिर्फ अपने मुकदमात शामिल हैं। शहबाज शरीफ अपने मुकदमों के पीछे लगे हुए हैं, मरियम अपने मुकदमों के पीछे लगी हुई है, हमजा शरीफ अपने मुकदमों के पीछे लगे हुए हैं और इसके बाद आपको अचानक पता चलेगा कि एक रात को ये सारे फरार हो गए। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एमक्यूएम रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दे दी है। उनका कहना था कि सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। और अब बात करते हैं स्वात के सूबाई हल्का पीपी 7 के ज़िमनी इंतखाब की। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार फजल मौला कामयाब हो गए। इसकी तफसीलात हमें फराहम करेंगे अनवर अंजुम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर अंजुम, आगाह कीजिएगा।
हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे इस हवाले से मजीद। अभी फिलहाल आपको आगाह करते चले कि पीटीआई के फजल मौला 17,500 वोट्स लेकर कामयाबी उन्होंने हासिल की है। आज ज़िमनी इंतखाब के हवाले से आपको बताते चले गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। सुआत से पीटीआई के फजल मौला 17,500 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। और अभी आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा किया। जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुश्तरका तरबियत, एयर डिफेंस समेत दीगर अस्करी शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। खित्ते में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के हवाले से मजीद जिम्मेदाराना किरदार अदा करने पर भी इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी नायब वजीर आजम और वजीर दिफा समेत सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद से मुलाकातें की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। आप रहिए आज के साथ।